جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 6 اپریل 2024 مفتی ڈاکٹر شعیب طیب اپنے پروگرام گہری سوچ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں میرے ویورز، سامعین، ناظرین سب کے سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ ہنس رہے ہوں گے، چہک رہے ہوں گے، مہک رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ مدارس عربیہ کا میٹرک آرٹس میں کیوں ہوتا ہے، سائنس میں کیوں نہیں کروایا جاتا۔ قرآن کریم کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کہ انسان کی پیدائش ایک جمے ہوئے خون سے ہے۔ تو سائنس تو انسان کی پہلی وحی سے شروع ہو گئی۔ قرآن کریم میں مختلف آیات میں آتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یذکرون، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں یہ سائنس پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ جہاں پر ان آیات کی اور تفاسیر ہیں وہاں پر ایک اس کی تفسیر سائنس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ آج ہم نے ترقی کی، لوہے کو ہم نے ہوا میں اڑا دیا اور ایک سکرین کی وجہ سے ہم پوری دنیا کو گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری سائنس کی ترقی ہے۔ ایک ٹیبلٹ کھاتے ہیں، جتنا سخت بخار ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک انجیکشن ہم لگواتے ہیں، جتنے سخت پین ہو، درد ہو، وہ فوراً سے پین رک جاتی ہے۔ تو یہ ساری سائنس کی ترقی ہے۔ تو یہ ہمارے مدارس کے اندر سائنس کو کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ اس وقت ملک عزیز، وطن عزیز پاکستان میں تقریباً 32 لاکھ طلباء کرام ہیں جو اس وقت مدارس عربیہ کے زیر تعلیم ہیں، مدارس عربیہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور 32,000 مدارس جو ہے وہ مختلف وفاق کے ساتھ جو ہے وہ کیا منسلک ہیں۔ جس میں سب سے بڑا وفاق المدارس العربیہ الپاکستان، ملتان الپاکستان ہے، جس کے تحت 20,000 مدارس رجسٹرڈ ہیں اور اس میں تقریباً 20 لاکھ طلباء کرام میل فیمیلز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تنظیم المدارس ہے جس میں 9,000 مدارس رجسٹرڈ ہیں، جس میں 11 لاکھ طلباء کرام پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد وفاق السلفیہ ہے، اس کے تحت بھی تقریباً جو ہے 50,000 علماء کرام، طلباء کرام جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رابطۃ الاسلامیہ، جماعت اسلامی کا مدرسہ ہے، مدارس ہے، اس کے ساتھ بھی 1400 مدارس جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں، اور فقہ جعفری کے بھی کچھ مدارس ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو حلقہ ہے وہ وفاق المدارس العربیہ الملتان کے پاس ہے۔ تو اس میں 20 لاکھ لوگ زیر تعلیم ہیں۔ میٹرک کروایا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہتا نہیں کرا، لیکن سائنس میں کیوں نہیں کرواتے؟ آرٹس میں کرواتے ہیں۔ سائنس کے فوائد ہیں بھائی، آرٹس کے نہیں ہیں۔ میں تقریباً گزشتہ کو 11 سال سے ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہوں، یہ سکولز کے ساتھ، کالجز کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ منسلک ہوں۔ تو میں نے دیکھا ہے جو لوگ سائنس میں، جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے سائنس میں، انہوں نے ایف ایس سی یعنی سائنس میں کیا ہوا ہے، ان کو جابز میں مل رہی ہیں، ان کی ترقیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ باقی لوگ بھی آتے ہیں، بڑی مشکل سے میرٹ پر اترتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر جا کے ان کو جابز ملتی ہیں۔ اب جو لوگ سائنس کے ساتھ اس وقت پڑھے ہوئے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں؟ ایک تو جاب ان کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کی میڈیسن جو ڈاکٹر لکھتا ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جو سائنس میں جس نے میٹرک اور ایف ایس سی کیا ہوتا ہے اس کی انگلش ہائی ہوتی ہے بنسبت آرٹس کے، ٹھیک ہے۔
इसके अलावा जो लोग साइंस से मैट्रिक और एफएससी करते हैं, ये 4 साल साइंस के साथ पढ़ते हैं, वो खुद रोज़गार अपना तलाश कर लेते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि 30 लाख उलमाए किराम मेल फीमेल्स जो है वो मदारिस के अंदर ज़ेर तालीम हैं, क्या हमने इनकी मईशत का कुछ नहीं सोचना? बस सिर्फ हमने उनको मसाजिद और मदारिस तक महदूद रखना है? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं करना। अगर एक मुफ्ती साहब का बेटा या बेटी डॉक्टर बन सकती है और आलिमा भी बन सकती है, और बेटा उसका आलिम और मुफ्ती भी बन सकता है, साथ डॉक्टर बन सकता है, तो मदारिस के तलबाए किराम क्यों नहीं बन सकते? मैंने चंद मदारिस से बात की तो वो कहने लगे जी हमें तो लिबर्टी नहीं मिलती। मैं आज ये अपील करता हूँ अपने इस गहरी सोच प्रोग्राम के साथ, और मैं चूँकि एक चैनल और एक फाद न्यूज़ ऑल वर्ल्ड के चेयरमैन होने के नाते से मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ, और चारों हमारे सूबों के जो वज़ीर तालीम हैं उनसे अपील करता हूँ कि आप लोग क्या करें, इन मदारिस को फ्री लिबर्टी फराहम करें। नहीं तो ऐसी भी तरतीब बन सकती है कि इन मदारिस के बच्चों को आप साइंस के साथ पढ़ा सकते हैं, वहाँ पर स्कूल्स हैं, ठीक है। अगर वालिदैन ने मजबूरी की वजह से या उनकी चाहत थी कि अपने बच्चे, वो लोग गरीब होते हैं या मिडिल तबका, उनकी चाहत थी कि ये मदारिस में चले जाएं, या इसका मसला और ये भी होता है कि औलाद, चारों हमारे सूबों के जो वज़ीर तालीम हैं उनसे अपील करता हूँ कि आप लोग क्या करें, इन मदारिस को फ्री लिबर्टी फराहम करें। नहीं तो ऐसी भी तरतीब बन सकती है कि इन मदारिस के बच्चों को आप साइंस के साथ पढ़ा सकते हैं, वहाँ पर स्कूल्स हैं, ठीक है। अगर वालिदैन ने मजबूरी की वजह से या उनकी चाहत थी कि अपने बच्चे, वो लोग गरीब होते हैं या मिडिल तबका, उनकी चाहत थी कि ये मदारिस में चले जाएं, या इसका मसला और ये भी होता है कि औलाद ज़्यादा होती है तो वो कहते हैं चलो जी मदरसा में भेज दो। अगर उन्होंने अपने बच्चे आपके पास भेज दी हैं तो खुदारा मैं सारे मदारिस जितने भी विफाक हैं सबसे हाथ जोड़कर अर्ज़ करता हूँ कि आप इनको मैट्रिक जो करवाएं वो साइंस में करवाएं, इनको एक वे दें, एक रास्ता दें चलने के लिए, ठीक है, ताकि ये फरागत के बाद 8 साला दरस निज़ामी कोर्स के बाद सिर्फ और सिर्फ मसाजिद और मदारिस के मोहताज ना रहें, बल्कि दुनिया के जिस शोबे में जाना चाहें जा सकें। अब जिस बंदे ने बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ी होती है तो मेरा मानना ये, मेरा तजर्बा, एक्सपीरियंस ये है कि वो दुनिया के जिस शोबे में जाना चाहता है जा सकता है। और जिसने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर, फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ी है, वो कंप्यूटर की हर फील्ड में जा सकता है। आज हम मिसालें देते हैं जी, वकालत ने भी तो मैट्रिक आर्ट्स में किया हुआ है, फलां साहब ने, पुलिस वालों ने, आर्मी वालों ने। भाई ये अंग्रेज़ की एक साजिश है जिसका हम सब शिकार हो चुके हैं, हम सब शिकार हो गए। तो इन 30 लाख तलबाए किराम, इन 30 लाख स्टूडेंट्स का क्या कसूर है? उन्होंने तो अपनी ज़िंदगियां आपको वक्फ कर दी, 8-10 साल लगा दिए उन्होंने, अपने आप को दे दिए। अब आपका मसला है, अब आपने सोचना ये है मदारिस में टीचर्स नहीं है, मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको टीचर्स सही तनख्वाह पर, रीज़नेबल तनख्वाह पर से मुहैया करूँगा। पूरे पाकिस्तान को मेरा पैगाम है। और अगर मदारिस के मसाइल हैं, लिबर्टी के मसाइल हैं, मैं पूरे पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए अपने खर्चे पर तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी है, मैं अपने खर्चे पर पूरे मदारिस, ये जो 30,000 मदारिस हैं, इनके अंदर लिबर्टी का इंतज़ाम करवाना, उनकी रजिस्टर्ड, उनसे करवाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने खर्चे पर आऊँगा और अपने खर्चे पर जाऊँगा, आपसे 1 रुपया किराया भी नहीं लूँगा, इवन के खाना भी अपना खाऊँगा। मैं कोई किसी का एजेंट बन के ये नहीं कह रहा आपको, बल्कि मेरे अंदर एक कुढ़न है, मेरे अंदर इन लोगों का एहसास है। जब ये लोग फारिग हो जाते हैं मदारिस से, फिर समटाइम इनको अरबी इबारत पढ़ना भी नहीं आती, इनको खिताबत करना भी नहीं आती, इनको इमामत करना भी नहीं आती, और फिर उधर से इनको अगर कोई जॉब का कोई
सिलसिला लगता है तो वहाँ वो साइंस में जॉब मिलती है, आर्ट्स में नहीं मिलती। 2012 में क्या हुआ, आसिफ अली जरदारी वजीर सदर बने, उसने कहा जिस बच्चे और बच्ची ने FSC किया हुआ है उसको जॉब दे दो। मैं थोड़ी सी और बात लंबी करूँगा, अपनी बात को गौर से सुनिएगा। इस वक्त 62% हुकूमत के अंडर इदारे काम कर रहे हैं स्कूल, और 27% हमारे प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स हैं जो मैट्रिक करवाते हैं, और 10% मदारिस के अंदर तलबाए किराम ज़ेर तालीम है। तो इनमें कुल हमारी स्टूडेंट्स की जो तादाद है, स्ट्रेंथ है, वो 5.5 करोड़ है, 5.5 करोड़ है। और जिनमें साइंस पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ 75 लाख से 1 करोड़ तक हैं। सिर्फ कितने? 75 लाख से 1 करोड़ तक हैं। और आज उन 75 लाख की हुकूमत हम 25 करोड़ आवाम पर हो रही है। बाकी जो यानी चलो 4.5 करोड़ लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ तो दरमियान में छोड़ जाते हैं, मैट्रिक में फेल हो गया या कुछ हो गया, वो सब आर्ट्स के नज़र हो गए, और हम वैसे के वैसे परेशान हैं। भाई अगर हम मदारिस में 30 लाख, मदारिस अरबिया के अंदर 30 लाख तलबा ज़ेर तालीम है, अगर आप सबका इम्तिहान दिलवाओगे तो सारे पास नहीं होंगे, ठीक है, उनमें से 20 लाख तो लोग निकल लेंगे ना हर साल। 20 लाख तो साइंस पढ़ के निकलेंगे ना, उनको एक रास्ता मिल जाएगा, उनको एक वे मिल जाएगा, उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, वो मेडिसिन पढ़ सकेंगे। वो लोगों की जो बकवास बाजियाँ लोग करते हैं उनके साथ इंग्लिश में, जो कि आर्ट्स पढ़े हुए बंदे को आमतौर पर समझ नहीं आती, क्योंकि आर्ट्स में इंग्लिश हाई नहीं होती, इंग्लिश बड़ी लो लेवल की आर्ट्स में पढ़ाई जाती है, और जो बच्चा साइंस से पढ़ता है उनको हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है। इसलिए मैं मदारिस से अरबिया नाज़िम आला कारी हनीफ जलंधरी साहब दामत बरकातहुमुल आली और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुमुल आली की मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने मदारिस के अंदर इस बात की सख्ती करें, जहाँ हमने और चीज़ों की सख्ती की है वहाँ पर मैट्रिक साइंस में होना चाहिए, या बच्चों को आलिम ही दाखिला ही उनको दें जिन्होंने एडमिशन ही उनका करें जिन्होंने साइंस के साथ मैट्रिक किया हुआ है। इंशाअल्लाह मेरी इन बातों को अगर आप अगले 100 साल के लिए सोचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मैं ये कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ, अगर आपने ये एक अशरा, एक 10 साल तक ये साइंस में मैट्रिक करवा दी, जिस दीन ने, जिस इस्लाम ने अगले 100 साल में तरक्की करनी है, वो इंशाअल्लाह अगले 20 सालों में तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। मेरा ये दावा है। मैं तालीम के साथ मुंसलिक हूँ। मुझे पता है कि साइंस वाले बंदे को सिर्फ जॉब मिलती है, या वो खुद अपनी एकेडमी बना सकता है, उसके पास लोग पढ़ने के लिए आते हैं, खुद रोजगार। साइंस पढ़ा हुआ बंदा माहाना 50,000 से लाख रुपया आराम से कमा सकता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर एतमाद पैदा होता है, और उसको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का और समझने का शऊर पैदा होता है। आर्ट्स वाले को तो कुछ नहीं आता। आज का जो व्लॉग है, आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, थोड़ा लंबा हो गया है, तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद अगले प्रोग्राम अपनी गहरी सोच के साथ।